ضلع پلوامہ کے دربگام علاقے میں ملیٹنٹوں کی جانب سے فوج کی ایک گشتی پارٹی پر حملہ کیا گیا۔ اس میں ایک فوجی جوان معمولی طور پر زخمی ہوا ہے۔ ملیٹنٹوں نے فوج کی 44 RR کی گشتی پارٹی پر آج دوپہر کو یہ حملہ اس وقت دربگام علاقے میں کیا جب فوج کی گشتی پارٹی علاقے سے گزر رہی تھی۔ ملیٹنٹوں نے نزدیکی سیب کے باغات سے فوجی پارٹی پر فائرنگ کی۔ فوجی اہلکاروں نے بھی جوابی کارروائی کی۔ اس علاقے میں کچھ دیر تک گولیوں کا تبادلہ ہوا۔ اس کی وجہ سے دربگام علاقے میں تمام کاروباری ادارے بند ہوئے اور لوگ محفوظ مقامات کی طرف بھاگ گئے۔ اس حملے کے بعد فورسز نے پورے علاقے کا محاصرہ کیا اور ملیٹنٹوں کی تلاش شروع کر دی۔ ملیٹنٹ حملے میں زخمی فوجی جوان کی شناخت سپاہی جیتو تومر کے طور پر ہوئی ہے۔ ان کی حالت مستحکم بتائی جاتی ہے۔ جموں کشمیر میں کورونا وائرس کے مثبت کیسز اور اس وائرس سے متاثرہ افراد کی اموات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جموں کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے متاثرہ مزید 17 مریضوں کی موت ہو چکی ہے۔ ان میں کشمیر سے 16 اور جموں سے 1 ہے۔ جموں کشمیر میں اب تک کورونا وائرس سے 365 مریض فوت ہو چکے ہیں۔ ادھر یوٹی میں آج مزید 450 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ ان میں کشمیر سے 367 افراد کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ جموں خطے سے آج مزید 83 افراد کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ جموں کشمیر میں اب تک 19,869 افراد اس وائرس کے شکار ہو گئے ہیں۔ ابھی بھی یوٹی میں 7,662 ایکٹیو کیسز ہیں۔ آج مزید 520 افراد صحتیاب ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر میں اب تک 11,842 افراد صحتیاب بھی ہو چکے ہیں۔ اب تک یوٹی میں 6,27,387 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ آج سری نگر ضلع سے 183 افراد کے ٹیسٹ مثبت پائے گئے ہیں۔ وادی کشمیر میں اب سکمز سری نگر اور سکمز بیمنا سمیت تمام اسپتال براہ راست طور پر فائنینشل کمشنر ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کے تحت کام کریں گے۔ اس سلسلے میں جموں کشمیر انتظامیہ نے باضابطہ طور پر ایک آرڈر جاری کیا ہے۔ کووڈ-19 کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ کورونا کے خاتمے تک اس آرڈر پر عمل جاری رہے گا۔ کورونا وبا کے چلتے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی فروخت زبردست متاثر ہوئی ہے۔ اس سال مویشی فروخت کرنے والے تاجروں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سری نگر کے مین مارکیٹ عیدگاہ میں قربانی کے جانور نہ کے برابر فروخت ہو رہے ہیں۔ پیش ہے ہمارے چیف رپورٹر پرویز بٹ کی رپورٹ۔ عید الاضحیٰ مسلمانوں کا ایک ایسا تہوار ہے جس دن مسلمان سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے حلال جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ پوری دنیا کی طرح وادی کشمیر میں بھی سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے مسلمان جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ ہر سال سری نگر کی تاریخی عیدگاہ میں بکرے اور بھیڑوں کی خرید و فروخت کے لیے خاص بازار سجایا جاتا ہے اور یہاں ہر سال لاکھوں بھیڑ بکرے فروخت کیے جاتے ہیں، لیکن اس سال کورونا کے چلتے مویشیوں کی فروخت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ان دنوں عیدگاہ مارکیٹ میں پہلے جیسی رونق نظر ہی نہیں آ رہی۔ بس چند ہی لوگ مویشیوں کی خرید و فروخت میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق کورونا وبا کے چلتے ان کی معاشی حالت خراب ہے، جس کی وجہ سے بیشتر لوگ قربانی نہیں کر پا رہے ہیں۔ قربانی کرنا تو سنت مبارک ہے، وہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ کر سکتا ہے، جس کو نہیں چاہے وہ نہیں کر سکتا ہے۔ حالات بھی یہاں خراب ہے نا، مالی حالات یہاں، اس لیے کم لوگ کر رہے ہیں اس وقت۔ تو پچھلے سال کی جیسا بازار نہیں ہے اس بار؟ پچھلے سال سے کم بازار ہے۔ یہاں پر قربانی کے لیے آئے ہیں، بکرا لینے کے لیے آئے ہیں، جو مطلب مجھے لگتا ہے جو کووڈ-19 کی وجہ سے بہت کم رش ہے۔ جہاں جتنا یہاں پر ہوتا تھا اتنا یہاں پر نہیں ہے، لوگ بہت کم دکھ رہے ہیں اور قربانی کی جو بھیڑ تھی وہ بہت کم ہے اس ٹائم، جتنی ہوتی تھی اتنی نہیں ہے اس ٹائم۔ میں بکرا لینے آیا ہوں۔ مویشی فروخت کرنے کے لیے لوگ یوٹی کے کونے کونے سے یہاں آتے ہیں۔ یہاں پہاڑی علاقہ گریز اور پنچ کے بھی بھیڑ بکرے فروخت کے لیے رکھے گئے ہیں، لیکن جو مویشی فروخت کرنے والے سالانہ لاکھوں روپے کا منافع حاصل کر لیتے تھے، اس سال کووڈ-19 نے ان کو بالکل مایوس کر دیا ہے۔ ان کے مطابق اس سال انہیں بھاری نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ تھوڑا اچھا نہیں رہا سر، کرونا وائرس کی وجہ سے اچھا نہیں رہا مال۔ اب ہمارا بہت ڈاؤن ہو رہا ہے، ریٹ ڈاؤن ہو گیا، نکل نہیں رہا مال۔
ठीक था, पिछले साल ठीक चला है, इस साल कुछ नहीं, हमको घाटा आ रहा है सब लोगों को, क्या करेंगे। कितनी दूर से लाया था माल? बहुत दूर से लाते हैं, पहाड़ से लाते हैं, द्रास से लाया, कुछ करगुल से लाया, कुछ मटेन से लाया, कुछ माल अभी भी मटेन में है। अब पीछे वाला माल बंद कर दिया हमने बोला इधर चल नहीं रहा है। रेट नहीं है सर, कुछ नहीं, पास पिछले साल अच्छा है, इस साल नहीं है कुछ रेट, घाटे पर बेचता है ना। वजह ये कोरोना वायरस की हालत, लॉकडाउन है ना, इसीलिए। हालांकि श्रीनगर में लॉकडाउन जारी है, ताहम ईद उल अजहा के चलते इंतजामिया ने ईदगाह में कुर्बानी के मवेशियों की खरीद फरोख्त की इजाजत दी है। हर साल की तरह इस साल भी कुर्बानी के जानवरों का बाज़ार यहाँ तवारीखी ईदगाह में लगा तो है, ताहम हमने देखा है यहाँ पे जो रश हुआ करता था वो इस बारी कोविड-19 की वजह से वैसा रश नहीं है। दूसरी ओर अगर हम बात करें जो इक़्तिसादी हालात यहाँ पे 5 अगस्त से जो ख़राब हुए हैं और लोगों को काफ़ी धचका लगा है इक़्तिसादी तौर पे, उसकी वजह से भी यहाँ जो ख़रीदो फ़रोख्त है बहुत कम है। दूर दूर से यहाँ लोग जो है वो अपना माल लेके आते हैं, कुर्बानी के जानवर लेके आते हैं, ताहम इस बारी उनको यहाँ जानवरों के ख़रीदार नहीं मिले। तो रोज़वानी के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कोविड-19 की वजह से ईद उल अजहा के मौके पर ताजरों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर के लाल चौक में ईद के मौके पर जबरदस्त खरीदारी की जाती थी, लेकिन इस साल बहुत कम खरीदार ही यहाँ नजर आ रहे हैं। बकरियों और मिठाइयों की दुकानों में हम अक़साम के केक और मिठाइयाँ तैयार है, लेकिन माशी तंगी की वजह से लोग उसे खरीदने से कासिर है। लाल चौक में कोरोना वबा की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर कपड़े का कारोबार हुआ है। जिनका गवर्नमेंट ने हमें रिलैक्सेशन दी है कि काम कुछ भी नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है ड्यू टू कोविड के वजह से यहाँ किसी के पास कुछ पैसा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ 4 महीना लॉकडाउन रहा, तो उस वजह से लोगों के पास कुछ भी पैसा नहीं है। हम आज अरफा है, आप देखिए हमारे पास कोई कस्टमर नहीं है। ना उम्मीद था उतना नहीं हुआ, जो पहले ईदें होती हैं उन्हें अलग ही होता है, मगर इसमें हमने बनाया था, अब मतलब दिल पे पत्थर रखकर हमने उधर पैसे जमा किए। पैसे को आपको पता ही कितने महीने तक बंद रहा, तो बाकी हमें अल्लाह पर छोड़ा। गांदरबल में ईद से कबल चहल पहल शुरू हो गई है। जिला इंतजामिया ने ईद उल अजहा के मद्देनजर जिले में लॉकडाउन में 3 दिनों की नरमी का ऐलान किया है। लोग ईद की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है, लेकिन कसीर तादाद में लोग बाजारों में नजर आ रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से गाइडलाइंस पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। ईद उल अजहा है, उसके सिलसिले में हमारा जो मार्केट है, हमने कल से मार्केट को ओपन किया। ये 3 दिन ओपन रहेगा, 28, 29 और 30। तो 3 दिन हमने बाज़ाब्ता इसके शेड्यूल बना के रखे, कौन कौन सा कमोडिटी वाला किस किस दिन खुला रहेगा, वो शेड्यूल हमने डिस्प्ले करके रखा है और उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN एतू ने लॉकडाउन में ईद उल अजहा के मद्देनजर दी गई 3 रोज की नरमी का जायजा लिया। उन्होंने कोविड-19 की गाइडलाइंस जैसे मास्क का इस्तेमाल और समाजी दूरी पर अमलावरी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। DC ने ईद के लिए बेहतर इंतजामात की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के बाजार का भी जायजा लिया। इससे हमने जो है लॉकडाउन में 3 दिन का रेस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स किया था। लोगों को जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है और ख़ासतौर से ईद के हवाले से वो सारी की सारी चीज़ें हमने फराहम रखी है, और हमने लोगों को बार बार ये कहा कि वो ज़रूर ईद मनाएं, खुशी से मनाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क का इस्तेमाल है, बाकी जो एडवाइजरीज़ हैं कोविड के चलते हुए उन पर अमल करें। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर सैफुद्दीन सोज का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सोज श्रीनगर में अपने घर के बाहर झांक रहे हैं। इस दौरान पुलिस उन्हें रोक रही है। सोज का कहना है कि उन्हें घर से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने कल सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि सोज घर में नजरबंद नहीं है और वो बिल्कुल आजाद है। आपको बाहर जाना अलाउड है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने गवर्नमेंट ने कहा आई एम फ्री पर्सन, लेकिन यहाँ ये लोग नहीं मानते हैं। ये कहते हैं ऊपर से ऑर्डर है, अब मैं उसका क्या कर सकता हूँ। ये आप देखते हैं शहरी आज़ादी को क्या हो गया,
I have decided to go to the court for whatever it is worth. सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इस गवर्नमेंट ने उस गवर्नमेंट ने कहा कि आराम कैसे होगा नहीं सर बीपी बंद है कैसे इसका तो बंद कैसे कर सकते मेरा घर है आप किसने उनको भगाना यहाँ से कैसे भगाएगा आप जाओ 14 जून को गुम हुए पीएचडी स्कॉलर हिलाल अहमद डार के अहल खाना ने आज श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहिरा किया। उन्होंने पुलिस और फौज से उनके लख्ते जिगर को ट्रेस करने में मदद की अपील की। वहीं हिलाल के घर वालों ने पुलिस की काविशों की सताइश भी की। पुलिस के मुताबिक हिलाल अहमद डार मुबैना तौर पर मिलिटेंट की सफू में शामिल हो गया है। हमारा बच्चा जो है हिलाल अहमद डार जो कि बेमना का रहता है, पीएचडी स्कॉलर है, 14 जून से मिसिंग है। अभी तक वो डिसअपीयर ही हुआ, दिन दहाड़े डिसअपीयर हुआ। अभी तक हमें उसका कोई सुराग नहीं मिला। हमें पुलिस बहुत मदद कर रही है, हम और मदद चाहते हैं ताकि वो बच्चा हमें मिल जाए और हम भी ईद मनाए उस बच्चे के साथ। अवंतीपुरा में आज महकमे आरडीडी के साथ काम कर रहे ठेकेदारों ने बीडीओ ऑफिस के सामने एहतजाज किया। उनका कहना था कि ठेकेदारों की बिलें 2 सालों से वागुजार नहीं की गई है। उनका कहना था कि ब्लॉक ऑफिस में कुछ असर रसूख रखने वाले ठेकेदारों की रकम वागुजार की गई है। उन्होंने कहा कि ऑफिस में काम कर रहे मुलाजमीन उनके साथ बदसलूकी करते हैं। बीडीसी चेयरमैन अब्दुल अहद ने बताया कि ठेकेदारों की तमाम रकमात जल्द ही अदा की जाएंगी। उन्होंने बताया कि जो भी मुलाजिम किसी ठेकेदार के साथ बदसलूकी से पेश आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीडीओ साहब से हम पहले मिले, उन्होंने हमें कमिटमेंट की कि जो भी पैसा आएगा वो 19 और 20 को हम करेंगे, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 20 और 19। लेकिन जब हमने एफटीओ चेक किया वहां से उन्होंने 18 और 19 को, जो मेन इशू इसी पे हो गया। जब कमिटमेंट हमारे साथ कुछ और थी और हो गया, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अब ईद है, इसलिए हमें जल्द से जल्द पेमेंट वागुजार की जाए। सबके साथ यकसान सलूक होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। और हम अब बीडीसी से मतलब गुजारिश करते हैं कि आप ही हमारा मसला हल करो। नहीं, मैं इस मसले में 2 दिन पहले वीडियो साहब से मिला। मैंने उनको कहा, ये ठेकेदार साहब भी वहीं थे, तो मैंने कहा सबको अगर 30 लाख आए हैं हमारे ब्लॉक में, सबको मिल बांट के देना, 50-50 हजार या 1-1 लाख सब, क्योंकि ये सबके लिए है। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। समरकंद से लाया गया समाचार।